His Grace Rukmini Krishna Prabhu with us. So we welcome him by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. A brief introduction about Prabhuji. Prabhuji is disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. He associated with ISKCON, introduced to ISKCON in 1996, serving ISKCON in various leaderships and educational roles for nearly 3 decades. Leadership role: served as co-president of ISKCON Punjabi Bagh from 2004, contributing to congregation development, temple administration, and community outreach. Professional background: engineering graduate from BITS Pilani, formerly served as senior manager North India at Bharat Petroleum. Current services: serving as regional zonal secretary, assisting ISKCON centers in organizational and spiritual development. Actively teaches Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhav courses and conducts Japa seminars, preaching and guidance. Known for his systematic scriptural presentations, emphasis on practical devotion and personal mentoring of devotees. I hope that all the devotees know about Rukmini Krishna Prabhu, right? From Delhi. So Prabhuji will be speaking on moon-like devotees of Chaitanya Chandra, Rupa Goswami and Sanatan Goswami. Actually now His Grace Anuttam Prabhu was supposed to give lecture, but he is in GBC meeting, so he is little late. So it has been shifted. So last lecture will be given by Anuttam Prabhu. So now in his place, Rukmini Krishna Prabhu will give the lecture. Moon-like devotees of Lord Chaitanya Chandra, Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari. Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravana Chari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री राधा माधव सखी बिंद की, श्री पंच तत्व की, पहला नरसिंह देव भगवान की, विद्या देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री मायापुर धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। So I am very happy to be here in मायापुर धाम श्रवण उत्सव। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मायापुर धाम में यहाँ उपस्थित हूँ श्रवण उत्सव में। I am feeling very much honored. तो मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। I have been given this opportunity to do some service in the मायापुर धाम। तो मुझे ये सेवा का मौका मिला है श्री मायापुर धाम में। It's a wonderful topic, moon-like devotees of Lord Chaitanya. तो बहुत ही सुंदर मुझे शीर्षक मिला है चैतन्य महाप्रभु के चंद्र के समान चमकते हुए भक्त। In this material world, everyone wants to become some star. तो भौतिक संसार में सब कोई एक तारा बनना चाहता है। Sports star, cinema star, superstar. तो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई सिनेमा का नायक बनना चाहता है, कोई सुपरस्टार बनना चाहता है। But Prabhupada used to say,
प्रभुपाद जी कहा करते थे, in our movement, हमारे आंदोलन में we don't need stars, we need moons. तो हमें तारे की आवश्यकता नहीं है, हमें चंद्रमाओं की आवश्यकता है। And Lord Krishna also says in Bhagavad Gita, और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं Nakshatranam aham shashi. कि जितने भी नक्षत्र हैं उनमें मैं चंद्रमा हूँ। Okay, so moon-like devotees, it's very, Rup and Sanatan, they were very, very close associates of Lord Chaitanya. तो चंद्रमा के समान भक्त रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही नज़दीकी पार्षद थे। So today, in a very limited time, तो आज बहुत सीमित समय के अंतर्गत we'll try to draw some teachings and inspirations तो हम प्रयास करेंगे कि हम कुछ शिक्षाएं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम प्रेरणा ले सकें from their lives, उनके जीवन से, so that ताकि we can also become moon-like devotees in this wonderful movement of Srila Prabhupada. ताकि हम सब भी चंद्रमा के समान चमकते हुए भक्त बन सके श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में। His Holiness Giriraj Swami Maharaj परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज has already written a book, Many Moons. ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कई सारे चंद्रमाएं, मेनी मून्स, Where he has described how the devotees, while leaving their body, were remembering Krishna. और जिसमें कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से भक्त जब अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो वो भगवान को स्मरण कर पाए। Yesterday I was reading Chaitanya Charitamrita, कल मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था glories of Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर जी की महिमाएं। There Srila Prabhupada is writing, वहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, by the life of Srila Haridas Thakur, श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन से we can learn that हम सीख सकते हैं anyone can become great कोई भी महान बन सकता है simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. अगर वो भगवान के नामों का सिर्फ जप करे। Similarly, when Srila Prabhupada brought His Holiness Jayapataka Swami Maharaj here, उसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी को यहाँ पर लेकर आए, when they acquired this land in Mayapur Dham, और ये जमीन का अधिग्रहण किया मायापुर धाम में, so Prabhupada told Jayapataka Swami Maharaj. तो प्रभुपाद जी ने परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी को बोला, Maharaj was a young sannyasi in his early 20s. महाराज उस समय एक बहुत ही नवयुवक सन्यासी थे, सिर्फ 20 के आसपास उनकी आयु थी। Prabhupada said, take it and develop it तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि ये लो और इसका विस्तार करो, and enjoy it. इसका विकास करो और खूब आनंद लो। Maharaj was bewildered. तो महाराज बहुत आश्चर्यचकित हो गए। Maharaj said, I am very young. उन्होंने बोला प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी मैं तो बहुत ही युवक हूँ। Prabhupada said, this is bodily conception of life. प्रभुपाद जी ने बोला कि ये सिर्फ एक शारीरिक अवधारणा है। That means, इसका मतलब क्या है? by the mercy of Lord Chaitanya चैतन्य महाप्रभु की कृपा से and his pure devotees, और उनके शुद्ध भक्तों के nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है। So today we'll try to discuss तो आज हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का, and we beg for the mercy of this holy dham, और हम इस पावन पवित्र धाम से कृपा की याचना करते हैं Srila Prabhupada and all the devotees. श्रील प्रभुपाद जी और सभी भक्तों से, We can draw some inspiration ताकि हम कुछ प्रेरणा के बिंदु निकाल सकें from the examples, instructions and teachings of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. उनके निर्देशों से, उनकी शिक्षाओं से हम कुछ सीख सके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी So के, that we can also please Srila Prabhupada and become his moon-like devotees. ताकि हम सब भी श्रील प्रभुपाद जी की इस आंदोलन में प्रचार में जुड़ सके और चंद्रमा के समान चमकते हुए भक्त बन सके। So Sanatana Goswami is called Sambandha Acharya सनातन गोस्वामी जी को संबंध आचार्य कहा जाता है, and Rupa Goswami is called Rasa Acharya. रूप गोस्वामी जी को रस आचार्य कहा जाता है। So these two acharyas have very, very important role to play in the lives of all the conditioned souls. तो ये इन दो आचार्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सभी जो भक्त हैं इस भौतिक संसार के अंदर। In today's material world, आज के इस भौतिक संसार में the biggest problem is problem of relationships. सबसे बड़ा जो समस्या है वो है संबंधों की समस्याएं। We have progressed technically, हम लोग तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं, but everyone we have gone down very low in relationships. लेकिन संबंधों की जहाँ तक बात है तो हमारा बहुत नीचे चले गए हैं हम। We are everyone in crisis, no relationship. हर किसी के जीवन में तकलीफ है क्योंकि उसके जीवन में संबंधों की बहुत कमी है। On Facebook may have 1,000 friends, फेसबुक पे हो सकते हैं उनके हजारों दोस्त हों, all virtual friends. लेकिन ये सब सिर्फ वर्चुअल हैं।
but actual no friends. लेकिन वास्तविकता में कोई मित्र नहीं है, Loneliness. अकेलापन। And when there's a loneliness, there's no relationship, there's no rasa in life. और जब ऐसा अकेलापन रहता है, जब हमारे आसपास को नहीं होता है, तो जीवन के अंदर कोई रस नहीं होता। Okay, even though our movement is a personalist movement, हालांकि हमारा जो ये आंदोलन है वो व्यक्तिगत आंदोलन है, but still there are no relationships, no rasa. लेकिन अगर संबंध नहीं होगा तो इसमें रस नहीं आएगा। So very difficult to carry on spiritual life without relationships, without rasa. तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा अगर हमारे जीवन में संबंध नहीं होंगे, रस नहीं होगा। In Bhakti Rasam, in Nectar of Devotion, भक्ति रसामृत सिंधु में Srila Prabhupada is writing in preface, श्रील प्रभुपाद जी उसके आमुख में लिखते हैं, everyone is looking for rasa, हर कोई रस ढूंढ रहा है। but there are two kinds of rasa, mundane rasa and spiritual rasa. दो प्रकार के रस हैं, एक है भौतिक रस और एक है आध्यात्मिक रस। Until unless we get some higher taste in our spiritual life, जब तक हमें एक ऊंचा रस नहीं मिलेगा अपने आध्यात्मिक it's जीवन very में, difficult to continue in Krishna consciousness. तो बहुत मुश्किल होगा कि हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके। We cannot continue long just based on philosophy, based on our determination. सिर्फ और सिर्फ दर्शन के माध्यम से, अपनी दृढ़ता के बल पे हम भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ सकते। There are so many distractions, इतने सारे अलग अलग प्रकार से हमारे मन को बहकाने के लिए चीजें हैं, allurements, attractions. इतनी सारी आकर्षण है। So until unless we have some higher taste in our spiritual practices, तो जब तक हमें अपने आध्यात्मिक जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं उसमें ऊंचा रस नहीं मिलेगा, so it's very difficult to continue. तो बहुत मुश्किल है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। That's why Srila Prabhupada used to say, इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे don't be surprised कि आप आश्चर्यचकित मत होइए who has gone, who has left Krishna consciousness, कि कौन चला गया, कौन भक्ति छोड़ गया, but be surprised who is continuing. लेकिन आश्चर्यचकित इस चीज से हुई है कि अगर कोई कृष्ण भावनामृत में टिका हुआ है Continuing blissfully. और खुश रह के सुख पूर्वक टिका हुआ है, Okay. So very, very important. तो बहुत महत्वपूर्ण है। So rasa will come if there is relationship. तो रस तभी आएगा जब हमारे जीवन में संबंध होंगे। Relationship, sambandha is like a fruit तो संबंध जो है एक फल के समान है, and rasa is his juice. और जो रस है वो उस फल का जूस है। So my presentation will be divided in two parts. तो मैं जो आज चर्चा करूंगा ये दो भागों में होगा। Number one, how Rup and Sanatan got incredible empowerment. कि कैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भर भर के उनको चैतन्य महाप्रभु की तरफ से शक्ति प्रदान की गई, And second, और दूसरा what were the instructions given to them? क्या उनको शिक्षाएं, क्या उनको निर्देश मिले थे, And how by following those instructions, और किस प्रकार से उन निर्देशों का पालन करके we can get higher rasa in our spiritual life. हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऊंचा रस हमें मिल सकता है। Okay. So Rup and Sanatan Goswami met Chaitanya Mahaprabhu 3 times. तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से 3 बार मिले थे, In all the 3 meetings, something very significant happened. और तीनों जो उनकी मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु से उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई, And in all these meetings, we can come to know their wonderful qualities. और इन तीनों मुलाकातों से हम देख सकते हैं कि उनके अंदर कितने सुंदर सुंदर गुण थे। The first meeting was at Ramakeli. रामकेली में पहली मुलाकात हुई। Chaitanya Mahaprabhu wanted to go to Vrindavan, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, but he intentionally took a route through Bengal. लेकिन उन्होंने जानबूझकर बंगाल के तरफ, बंगाल की ओर से वो रास्ता लिया। He reached at Ramkeli तो रामकेली पहुंचे just to meet these 2 brothers, क्योंकि वो इन दोनों भाइयों से मिलना चाहते थे। Shakar Malik and Dabir Khas, उस समय उनका नाम साकर मलिक और दबीर कास था। Finance Minister and Personal Secretary of Nawab Hussain Shah. हाँ, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और नवाब के जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो थे। These 2 brothers were so eager to meet Chaitanya Mahaprabhu. ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए इतने आतुर थे They used to write letters. कि वो उनको चिट्ठी लिखा करते थे। They wanted to surrender their lives. वो अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। So just by seeing their letters, तो उनके चिट्ठियों को देखकर they won the heart of Chaitanya Mahaprabhu. वो चैतन्य महाप्रभु के दिल को जीत लिया उन्होंने। So Mahaprabhu specially came to meet them. तो महाप्रभु विशेष करके आए थे इन दोनों भाइयों से मिलने के लिए। Okay. And when at the dead of night, और रात के बिल्कुल बीच रात में this Dabir Khas and Shakar Malik went to meet Chaitanya Mahaprabhu. दबीर खास और साकर मलिक के चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, And they did not approach him directly. और वो सीधा उनके पास नहीं गए। They approached him through Haridas Thakur and Nityanand Prabhu. वो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उनके पास And गए। their first meeting, they exhibited extreme humility.
और अपने पहले ही मुलाकात में इतनी विनम्रता प्रस्तुत की उन्होंने। They did not introduce himself to Chaitanya Mahaprabhu. Oh, we are the finance minister and personal secretary of the king. उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया कि वो कितने बड़े आदमी हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और पर्सनल सेक्रेटरी हैं राजा के। They say we are most fallen. इसके विपरीत उन्होंने कहा कि हम बहुत पतित हैं। नीच जाति, नीच संगी, नीच कर्मी. नीच जाति, नीच संगी, नीच कर्मी, ऐसा बोला। We are serving the cow eaters. उन्होंने बोला कि हम गो मांस खाने वालों के सेवा में लगे हैं। We are millions and millions times more fallen than Jagai and Madhai. कह रहे थे कि हम लाखों करोड़ों गुना पतित हैं जगाई मदाई से भी। For delivering Jagai and Madhai, you don't have to work very hard. जगाई मदाई का उद्धार करने के लिए तो आपको बहुत मुश्किल नहीं आई, They were born in a Brahmin family. क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए They थे। were staying in Dham. वो धाम में रह रहे थे, They were just addicted to some sinful activities. बस वो कुछ पाप पूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। And just by taking your name, just by Namabhas, all those sinful activities were gone. और बस आपका नाम लेने से, सिर्फ नामाभास के माध्यम से उनके सारे पाप में कर्म के फल मिट गए। But they didn't serve any meat eater. लेकिन उन्होंने मांस खाने वालों की सेवा नहीं की थी। They did not associate with Yamnas and Malechas. वो यवनों और मलेच्छों के साथ नहीं रहते थे, But we associated with them. लेकिन हम उनके साथ रह रहे, उनका We are संग कर रहे। serving the cow eat meaters. हम मांस खाने वाले, गो मांस खाने वालों की सेवा में लगे हैं। So we are millions and millions times more fallen. तो इसलिए हम लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पतित हैं। And if you are really Patit Pavan, और अगर आप वास्तविकता में पतित पावन हैं, so we are the most suitable candidate. तो हम सबसे उपयुक्त हैं उस कृपा को प्राप्त करने के They लिए। were not just speaking flowery language. और वो सिर्फ ऐसा कहने के लिए चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। Their humility really touched the heart of Lord Chaitanya. उनका जो विनम्रता था वाकई में चैतन्य महाप्रभु के हृदय को स्पर्श किया। So Mahaprabhu said, please stop your this humility. तो महाप्रभु को बोलना पड़ा कि अरे इतना विनम्र मत बनो आप। No? He said, आज है ते दोहर राम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तोमार दैन्य फाटे मोरा मन. He said, now from today you are called Roop and Sanatan. हरि वो। And दैन्य छाड़, give up this humility. तोमार दैन्य फाटे मोरा मन. Your humility is tearing apart my heart. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आज से आप दोनों का नाम होगा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और कृपया करके आप अपनी इस इतनी विनम्रता, दीनता को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी इतनी दीनता के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। Humility is the foundation for building or rebuilding our relationship with Krishna. तो ये जो विनम्रता है, ये हमारे कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने का नींव है, आधार है। In Brihad Bhagavatamrita, written by Sanatan Goswami, बृहद भागवतामृत जो कि सनातन गोस्वामी जी ने लिखी है, he said, humility is the seed as well as fruit of prema. तो कहते हैं कि जो विनम्रता है वो बीज भी है और वो फल भी है प्रेम का। If you want to really attain the goal of our life, love of Krishna, अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, every intelligent devotee will always aspire to cultivate humility. हर बुद्धिमान भक्त प्रयास करेगा कि वो अपने जीवन में विनम्रता को लेकर आए। Without practicing humility, we cannot last in Krishna consciousness. बिना विनम्रता का प्रयास किए हम अपने जीवन में टिक नहीं सकते हैं। We will commit offenses if you are not careful in observing humility. हम जरूर अपराध करेंगे अगर हम विनम्रता अपने जीवन में प्रयास नहीं करते हैं। So it's very difficult to last. तो बहुत मुश्किल होगा टिक पाना। Even if somehow we are able to carry along, we stay. अगर मान लो हम किसी प्रकार से टिक भी गए, But we won't be able to learn. तो हम सीख नहीं पाएंगे। Even if we are able to learn something, some philosophy, अगर मान लो हम थोड़ा सीख भी गए किसी दर्शन को, without humility we can never get love. तो बिना विनम्रता के हमें प्रेम नहीं मिल सकता। So it is not optional, it is mandatory. तो इसीलिए ये वैकल्पिक नहीं है कि हम विनम्र होएं, ये जरूरी है। So they were so humble that from Mahaprabhu's heart, the mercy started flowing out. It gushed out because it teared apart the heart of Mahaprabhu. तो वो इतने विनम्र थे कि महाप्रभु के हृदय से उनके प्रति जो प्रेम था उसका उद्गार बहने लगा। महाप्रभु के हृदय ऐसा फट गया और उससे उनके प्रति प्रेम की धारा बहने लगी। So this was the first meeting where we learned their humility. Due to their humility, they could attract the attention of Mahaprabhu. तो ये उनकी पहली मुलाकात थी चैतन्य महाप्रभु से, और यहाँ से हम देखते हैं कि विनम्रता के कारण वो चैतन्य महाप्रभु के कृपा को आकर्षित कर पाए। Then after getting initiated, और उसके बाद उनका दीक्षा भी हुआ। their humility and their eagerness to serve
Lord Chaitanya increased manifold. और जब उनके दीक्षा हो गया तो उसके बाद उनका विनम्रता और उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की जो तीव्रता थी वो और कई गुना ज्यादा बढ़ गया। Normally in our movement, हम देखते हैं कि हमारे आंदोलन में many people are very enthusiastic, very eager to receive Diksha. कई वक्त जो होते हैं वो दीक्षा के लिए बहुत लालायित रहते हैं And they feel that this is the ultimatum. और उनको लगता है कि यही जीवन का लक्ष्य है। After initiation, then they are not seen around. और दीक्षा होने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। No, it is a beginning. दीक्षा का मतलब है शुरुआत। So their eagerness was very intensified. तो उनकी जो आतुरता थी वो और कई गुना ज्यादा प्रगाढ़ हो गई। They performed yajna. उन्होंने यज्ञ किया। They requested qualified brahmanas. उन्होंने जो ब्राह्मण थे जो कि इसमें निपुण थे उनको निवेदन किया To perform yajna so that they could be relieved from their jobs. कि वो यज्ञ करें ताकि इनका नौकरी छूट जाए। Who in this material world will perform yajna to get relief from so excellent, wonderful government jobs? तो कौन व्यक्ति इस भौतिक संसार में यज्ञ करेगा ये प्रार्थना करते हुए कि उनका इतना जो सुंदर सरकारी नौकरी था वो छूट जाए। If you go to Ramkali now also, अगर अभी भी आप रामकेली में जाएंगे you can see they had beautiful palaces. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर महल हैं। Their individual palaces, they had their own swimming pools. उनके व्यक्तिगत महल थे और उसमें तरनताल भी था। Still, they were not at all attached. They just wanted to give it up and serve Lord Chaitanya. तो फिर भी वो उससे किसी भी रूप से आकर्षित नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना चाहते थे। So Rupa and Sanatan met Chaitanya Mahaprabhu in their second meeting at Prayagraj and Varanasi. तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की दूसरी मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु से प्रयागराज और वाराणसी In में। this meeting, इस मुलाकात में they got education. उनको शिक्षा मिली Because of their humility and eagerness. क्योंकि उनका जो विनम्रता था और उनका आतुरता था। So the Lord Chaitanya thought they are the perfect candidates. तो चैतन्य महाप्रभु को लगा कि ये सबसे उपयुक्त व्यक्तित्व है इसके लिए। So Sanatan Goswami submitted to Chaitanya Mahaprabhu at Varanasi. तो सनातन गोस्वामी ने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को समर्पित किया वाराणसी में। नीच जाति नीच संगी पतित अधामा कुविश्य कुपे पाड़ी गोनाइनु जनामा. I am low born, I associate with lowly people, I am patit. So I was rotting in this material world. I had wasted my life. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ऐसा बोला कि मैं नीच जाति का हूँ और मैंने नीच लोगों की सेवा की है। मैं सड़ रहा था इस भौतिक संसार में And I wasted my life. और मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। And then he asked the question, Ke Ami, who am I? और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि मैं कौन हूँ। Mahaprabhu was very impressed. महाप्रभु इससे बहुत प्रसन्न हुए। Sanatana Goswami said, although people call me a pandit, a very learned scholar. सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हालांकि लोग मुझे एक बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित कहते हैं, But I know I am a fool. I don't know who am I. पर मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। And then Mahaprabhu gave him the old Sambandh Gyan. और फिर महाप्रभु ने उनको पूर्ण रूप से संबंध ज्ञान में। Similarly, Rupa Goswami approached Lord Chaitanya at Prayagraj. इसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को समर्पण किया प्रयागराज में। And Lord Chaitanya enlightened within his heart all the mysteries of rasa. और चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय के अंदर प्रकाशित किया जो रस है उसके सारे गुणों को। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रसो तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत. Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Ras Tattva, everything, Mahaprabhu enlightened in his heart. तो कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में प्रकाशित किया। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला. श्री रूप हृदय in the heart of Rupa Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में शक्ति संचारीला, he just empowered him. तो उनके हृदय में शक्ति का संचार कर दिया। It was just not the downloading of knowledge. ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि किसी ने ज्ञान अर्जित कर लिया। शक्ति संचारीला, he infused him with his power. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर शक्ति का संचार किया। सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला, and all the tattvas, all the truths were revealed within his heart. और सारे तत्वों को उनके हृदय के अंदर प्रकाशित किया। And within short time he became praveen and like expert devotee. और बहुत ही कम समय में वो एक प्रवीण भक्त बन गए। So it was not shiksha, it was shakti.
तो सिर्फ ये शिक्षा नहीं थी, ये शक्ति का संचार था। Once His Holiness Radha Govind Swami Maharaj was speaking about Roop Shiksha in his village. तो एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज अपने गांव में रूप शिक्षा के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। And he was also describing how Chaitanya Mahaprabhu in South India, wherever he used to go, embrace devotees, and those devotees, Shakti Sancharila, and he used to infuse them with his power. और वो बता रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गांव में जाते थे तो कैसे उन लोगों के हृदय के अंदर प्रेम शक्ति का संचार कर देते थे, Just by embracing them. बस उनको आलिंगन करके। So after the class, Maharaj asked any question. तो प्रवचन के बाद महाराज ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न है। So one very simple person got up and said, Maharaj, please embrace me so that I can also get the Shakti. तो एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति ने खड़े होकर महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप भी मेरा आलिंगन कर लीजिए ताकि मेरे अंदर भी प्रेम का संचार हो जाए। So Mahaprabhu was aware that this movement has to continue for next 10,000 years. तो महाप्रभु जानते थे कि इस आंदोलन को अगले 10,000 सालों तक चलना है। And Mahaprabhu was present on this planet. Just by looking or just by embracing, he could transfer the love in the heart. तो जब महाप्रभु उपस्थित थे इस धराधाम पे तो सिर्फ आलिंगन करके वो लोगों के अंदर शक्ति संचारित कर देते थे। But then he took Rupa and Sanatan Goswami फिर वो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी को and empowered them with the knowledge. उनको उनके अंदर शक्ति संचार किया So इस that ज्ञान का, by following the instructions of Rupa and Sanatan Goswami, ताकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के शिक्षाओं को निर्देशों का पालन करके, by studying their scriptures, उनके शास्त्रों का अध्ययन करके we can get this love. हमें ये प्रेम मिल सके। No? Like Narottam Das Thakur prays, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, Shri Rupa Sanatan Pade, Shri Rupa Sanatan Pade Haibe Akuti, Kabe Ham Pujavase Yugala Pariti. That when that day will come that I will develop attachment for the scriptures of Rupa and Sanatan, only then I will be able to understand the loving affairs of Radha and Krishna. तो वो अपने इस सुंदर भजन में ऐसे प्रार्थना करते हैं कि कब मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दिए गए दिव्य शास्त्रों को समझ पाऊंगा ताकि मेरे अंदर राधा और कृष्ण का जो युगल स्वरूप है उसके प्रति प्रेम प्राप्त हो सके। Okay, so this is the second meeting. तो ये था उनका दूसरा मुलाकात। So in the second meeting we say that even after getting the initiation, they were more humble and more eager. तो दूसरी मुलाकात में भी जब उनकी दीक्षा हो गई उसके बाद से भी वो कई गुना ज्यादा आतुर और कई गुना ज्यादा विनम्र बन गए थे। Srila Prabhupada says in the purport of Madhya Lila 19th chapter, श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत मध्य लीला के 19वें अध्याय के एक तात्पर्य में कहते हैं that anyone can be empowered कि किसी के अंदर भी शक्ति का संचार हो if सकता है one is very sincere and very eager to serve. अगर कोई बहुत विनम्रता से और बहुत दृढ़ता से सेवा, बहुत आतुरता से सेवा करने के लिए तैयार होता है। We all know that before going to US, हम सब जानते हैं कि अमेरिका जाने से पहले Srila Prabhupada stayed at Radha Damodar temple. श्रील प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रहते थे And Prabhupada used to earnestly pray to the Samadhi and Bhajan Kutir of Rupa Goswami. और प्रभुपाद जी बहुत हृदय से प्रार्थना करते थे रूप गोस्वामी के भजन कुटीर और समाधि पे। And one day Srila Prabhupada had the darshan of Rupa Goswami. और एक दिन श्रील प्रभुपाद जी को रूप गोस्वामी के साक्षात दर्शन हुए And Rupa Goswami Pad and showed Srila Prabhupada और रूप गोस्वामी पाद ने श्रील प्रभुपाद जी को ये आशान्वित किया that you go to West and your preaching will be successful. कि आप जाइए पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए और आपका प्रचार सफल होगा। His Grace Hari Shauri Prabhu mentioned in his diary. इसके सरी सौरी प्रभु ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया है। Then he mentioning that कि devotees asked Srila Prabhupada तो वो लिखते हैं कि भक्त प्रभुपाद जी से पूछते थे that did Rupa Goswami give you darshan in Radha Damodar temple? कि क्या रूप गोस्वामी ने आपको दर्शन दिए थे राधा दामोदर मंदिर में? Prabhupada very humbly said, it's an open secret. तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रेम पूर्वक बोला कि ये तो एक खुला रहस्य है। So Prabhupada was very eager and very sincere to serve the instruction of his spiritual master. तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत आतुर थे अपने आध्यात्मिक गुरु के दिए गए शिक्षाओं का पालन करने And के he लिए। got all empowerment. तो इसके कारण उनके अंदर शक्ति का संचार हुआ। So this is the second meeting. तो ये दूसरा उनकी मुलाकात थी। The third meeting at Jagannath Puri. तो तीसरी जो मुलाकात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की हुई थी महाप्रभु से वो जगन्नाथपुरी में हुई थी। So in this meeting, तो इस मुलाकात में we will see हम देखेंगे that they could understand the heart of Chaitanya Mahaprabhu. कि कैसे वो महाप्रभु के हृदय को समझ पाए। They became so
I can say, the intimate associate of Lord, वो चैतन्य महाप्रभु के इतने अंतरंग पार्षद बन गए that they could understand his heart. कि वो उनके हृदय को समझ पा रहे थे। The Rup Goswami was staying with Haridas Thakur in Siddhbakul रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर जी के साथ सिद्ध बकुल पे रहते थे in Jagannath Puri. जगन्नाथपुरी में। So in the Rath Yatra, तो रथ यात्रा में Chaitanya Mahaprabhu, on seeing the Lord Jagannath, he recited a verse तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देख के एक श्लोक बोला that was spoken by Srimati Radharani जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा बोला गया था when she met Lord Krishna in Kurukshetra. जब वो कृष्ण से मिली थी कुरुक्षेत्र में। And Rup Goswami composed a verse तो रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की expressing the same sentiments. उन्हीं भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए And he wrote that verse on a palm tree leaf. और उन्होंने एक ताम्रपत्र के ऊपर उसको लिखा And he put that leaf in the roof hatch. और वो उसको उन्होंने जो कुटिया थी उसके छत में रख दिया And he went to take bath. और वो स्नान करने चले गए। When he came back, when he was not there, Mahaprabhu came to his Siddhbakul. तो जब वो वहाँ पे नहीं थे तो चैतन्य महाप्रभु आए सिद्ध बकुल में And Mahaprabhu took off that leaf. और तो महाप्रभु ने उस पत्र को निकाला And he was surprised. और वो बहुत आश्चर्यचकित हो These गए are my sentiments. कि ये तो मेरी भावनाएं हैं। And when Rup Goswami came back, जब रूप गोस्वामी वापस आए Mahaprabhu slapped him. तो महाप्रभु ने उनको ऐसे थप्पड़ मारा Hey, था। how could you understand my heart? कैसे तुम मेरे हृदय को कैसे समझ गए? So then he asked Sarup Damodar, तो फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा how is it possible? ऐसा कैसे संभव है This Rupa could understand my heart. कि ये रूप मेरे हृदय को समझ पाया? And Sarup Damodar said, और स्वरूप दामोदर ने बोला it's all by your mercy. ये सब आपकी कृपा है। And then Mahaprabhu acknowledged. तो फिर महाप्रभु ने बोला प्रभु कहे इहाँ आमाए प्रयाग मिलीला योगे पात्र जानी इहाँ मोर कृपा तहैला. प्रभु कहे इहो आमाई प्रयाग मिलीला. I met him at प्रयाग. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हाँ मैं इसको प्रयाग में मिला था। योग पात्र जानी इहाँ मोर कृपा तहैला. I found him a suitable candidate. और मुझे ये एक योग्य पात्र लगा And he could attract my mercy. और इसने मेरी कृपा को अपने प्रति आकर्षित किया। तबे शक्ति संचारी आमी कैलुनुपदेश तुम्ही कहियो इहाँ रसेर विशेष. तबे शक्ति संचारी. Then I infused power in him तब जाके मैंने इसके हृदय में शक्ति का संचार किया and gave him instructions. और इसको निर्देश दिए। Now further you instruct him on the rasa tattva. और अब आगे तुम इसको रस तत्व के विषय में और बताओ। So similarly when Sanatana Goswami came to Jagannath Puri, उसी प्रकार से जब सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए so on the way when he was coming from Vrindavan to Jagannath Puri, तो जब वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे so on the way he he's got some skin disease, eczema. तो रास्ते में उनको एक चर्म रोग हो गया, एक्जिमा। On over his body he had pus and blood coming out, wounds. उनके पूरे शरीर से ऐसा पस निकल रहा था, खून निकल रहा था। And he was thinking now this body is useless. और उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये शरीर किसी काम का नहीं है। And he thought I'll commit suicide और उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा by putting myself under the wheel of Lord Jagannath's chariot in Rath Yatra. रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के चक्के के नीचे आके मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगा। See, this is the nature of this material world. ये इस भौतिक संसार का स्वरूप है। Sometimes even an advanced devotee through this pastime, कई बार उन्नत भक्त भी अपने लीलाओं के माध्यम से, Sanatana Goswami is showing when we are not in the association of devotees, सनातन गोस्वामी दिखा रहे हैं कि जब हम भक्तों के संग में नहीं होते हैं, all alone, अकेले रहते हैं, how our mind can cheat us. किस प्रकार से हमारा मन हमें धोखा दे सकता So है। Sanatana Goswami was making all plans. सनातन गोस्वामी देखे इस प्रकार से विचार बना रहे थे, But Mahaprabhu is Antaryami. पर महाप्रभु अंतर्यामी हैं। So Mahaprabhu used to embrace him again and again. तो महाप्रभु उनको बार बार गले लगा रहे थे And Sanatana Goswami used to feel more and more guilty. और सनातन गोस्वामी को और ज्यादा हृदय में ग्लानि होता And था। one day Mahaprabhu in front of Haridas Thakur, और एक दिन हरिदास ठाकुर के सामने चैतन्य महाप्रभु ने, he said, see this man, देखो इस व्यक्ति को, he wants to commit suicide. ये आत्महत्या करना चाहता है। What do you know? What do you think? By committing suicide, will you get the love of Krishna? तुमको क्या लगता है कि आत्महत्या करके तुमको कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा? How could you forget that this body doesn't belong to you? तुम कैसे भूल गए कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है? Your body is my property. ये शरीर तुम्हारा जो है वो मेरा प्रॉपर्टी है And I have to establish dharma through this body. और इस शरीर के माध्यम से मुझे धर्म की स्थापना करनी है।
So the Mahaprabhu then gave wonderful instructions to Sanatana Goswami. और फिर उसके बाद महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर निर्देश दिए सनातन गोस्वामी को। So we'll discuss in the second part of our presentation, we'll discuss that. तो हम अपने चर्चा के दूसरे भाग में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। So we could see our journey is also like this. If we really want to get empowerment, तो हम देख सकते हैं कि हम सब भी चाहते हैं कि हमारे अंदर शक्ति का संचार हो। so the foundation of getting empowerment is humility. तो जो आधार है शक्ति संचार होने का वो है विनम्रता। So when we are truly humble at heart, then we'll be able to receive knowledge in our heart. अगर हम हृदय से वास्तविक रूप में विनम्र बनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। Divya Gyan Hriday Prakashita. And then we can understand the heart of our spiritual master Srila Prabhupada. और तब जाके हम अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी के हृदय को समझ पाएंगे। Okay, so it's very essential. ये बहुत आवश्यक है। Okay, so then Chaitanya Mahaprabhu gave instructions to Sanatana Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को निर्देश दिए And it was meant for Rupa Goswami also. और ये रूप गोस्वामी के लिए भी था। 5 main instructions. 5 प्रमुख निर्देश। It's mentioned in Ante Leela 4.79 and 80. तो ये चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 79 और 80 में वर्णित है। This all of you can repeat after me. तो ये आप सब मेरे पीछे दोहराइए। It's very easy to repeat. बहुत आसान है। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निराधार। भक्त भक्ति प्रेम भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार। वैष्णवर कृत्य आर वैष्णव आचार। वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धार। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम निर्धार। वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। So there are mainly 2 instructions. तो इसमें मुख्य रूप से 2 शिक्षाएं हैं। भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, that you establish the truth of भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम। कि तुम जो भक्त भक्ति और कृष्ण प्रेम का सत्य है उसको स्थापित करो। That means you write scriptures, जिसका मतलब है कि तुम शास्त्रों की रचना करो। establishing this, clarifying these truths. इन सत्यों को और बताते हुए अच्छे से। And the second instruction says वैष्णव कृत्य आर वैष्णव आचार, वैष्णव सदाचार, you exhibit वैष्णव सदाचार। और दूसरा कि तुम वैष्णव सदाचार का प्रदर्शन करो। The other 3 instructions are the next verse. You can please repeat after me. और अगले 3 आदेश इस श्लोक में है, आप मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्ताना। 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 लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षाणा। लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षाणा। लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैष्णव शिक्षाण। So Krishna Bhakti, Krishna Prema Seva Pravartana. That is, for performing Krishna Bhakti, for cultivating Krishna Prem, Seva Pravartana establishes, please establish deities. तो कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम को पाने के लिए तुमको विग्रहों की स्थापना करनी होगी। Then Lupta Tirtha Uddhara, re-established all those lost places of pilgrimages. और पुनरुद्धार करिए उन सारे लीला स्थलियों का जो कि लुप्त हो गए हैं। Our Vairagya Shikshana, and then teach renunciation. और लोगों को किसकी शिक्षा दो? वैराग्य की। So 5 main instructions. तो 5 प्रमुख शिक्षाएं। Number 1 is Tattva. सबसे पहला तत्व, भक्ति भक्त कृष्ण प्रेम तत्व। भक्ति भक्त कृष्ण प्रेम, ये तत्व। सेकंड इज वैष्णव सदाचार। दूसरा वैष्णव सदाचार। थर्ड इज सर्विसेज इन द टेम्पल। तीसरा है मंदिर में सेवाएं। फोर्थ इज लुप्त तीर्थ उद्धार, री-एस्टैब्लिशिंग द लॉस्ट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस। चौथा है कि जो लुप्त स्थल लीला स्थलियां हैं उसका पुनरुद्धार करना। And fifth is Vairagya Shikshan, teaching renunciation. और पांचवा है वैराग्य शिक्षण। So if we can, Mahaprabhu told these instructions to Rupa and Sanatana Goswami.
तो महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी and they fulfilled all these instructions. और उन्होंने सारी शिक्षाओं को पूरा किया। Srila Prabhupada says all these 6 Goswamis are Mahajans for us. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी 6 गोस्वामी हैं ये हमारे लिए महाजन हैं, For all the ashramas. सारे आश्रमों के लिए। So if we can also follow these 5 instructions, तो अगर हम भी इन 5 निर्देशों का पालन कर सकें we'll also develop relationship with Krishna and we'll also able to relish rasa. तो हम भी कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर पाएंगे और हम भी रस का आनंद ले पाएंगे। Okay, so we'll go one by one in these 5 things. हम एक एक करके इन 5 आदेशों के ऊपर चर्चा करेंगे। First was Tattva. सबसे पहला है तत्व। So Rupa and Sanatan Goswami were very learned scholars. तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत योग्य, बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको. They were very expert in analyzing the different kinds of scriptures and establishing the true principles of dharma. तो बहुत दक्ष थे अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने में, उनको समझने में और जो धर्म के वास्तविक तत्व हैं उनको बताने में। लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो. No? So लोकानां हितकारिणो, for delivering all of us. तो इसलिए ताकि हम सबका उद्धार हो सके। Okay, so like when Sanatana Goswami asked Chaitanya Mahaprabhu, who am I? तो जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा कि मैं कौन हूँ, Mahaprabhu told him, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण ने तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश. That the real स्वरूप of living entity is that he is a servant of Krishna. तो महाप्रभु ने उनको बोला कि जो वास्तविक स्वरूप है एक जीवात्मा का, वो क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। Okay, so if you remember this, तो अगर हम ये याद रख पाएं, this is the beginning of spiritual knowledge. तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत है। Starting from this, Lord Chaitanya gave him all the tattva. और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनके सारे तत्वों के विषय में बताया। In the 20th chapter of middle in Madhya Leela, Sanatan Shiksha. 20वें अध्याय में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में सनातन शिक्षा में So Mahaprabhu is explaining in detail all the tattva about Krishna. महाप्रभु कृष्ण के संबंध में सारे तत्वों को विस्तार से बता रहे हैं। Different kinds of expansions, different incarnations. अलग अलग प्रकार के भगवान के जो अवतार हैं, जो उनके स्वरूप है, उसके बारे में बता रहे हैं। We welcome His Grace Anuttama Prabhu. His Grace Anuttama Prabhu की जय। तो हम लोग हिज ग्रेस अनुत्तमा प्रभु का स्वागत करते हैं। हिज ग्रेस अनुत्तमा प्रभु की जय। So although Srimad Bhagavatam gives एते चांशा कलापंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं. हालांकि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। Srimad Bhagavatam establishes who is the supreme. Bhagavatam establishes Krishna is the supreme personality of Godhead. तो श्रीमद् भागवतम ये स्थापित करता है कि कृष्ण जो हैं वो परम पुरुषोत्तम हैं। But the 6 Goswamis go further. पर जो 6 गोस्वामी हैं उससे आगे बढ़ जाते हैं। They establish the supreme personality of Krishna. वो इस बात को स्थापित करते हैं कि कृष्ण कैसे परम व्यक्तित्व हैं। Krishna of Mathura, Krishna of Dwarka and Krishna of Vrindavan. कृष्ण जो कि मथुरा के, कृष्ण जो कि द्वारका के और कृष्ण जो कि वृंदावन के। So much details. इतने विस्तार से। So it explains there is Swayam Roop Krishna, there is Swayam Prakash Krishna, there is Tadatmik Krishna. तो स्वयं प्रकाश कृष्ण, स्वयं रूप कृष्ण, तदात्मिक कृष्ण, Vaibhav Vilas, Prakash Vilas, so many expansions, incarnations. वैभव विलास, प्रकाश विलास, अलग अलग प्रकार के भगवान के विस्तारों के So विषय much में details. इतना विस्तृत रूप में। And we should not become lazy in understanding these details. और हम सबको ये जो विस्तार है, जो वर्णन है, इसको सीखने में आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करिया आलस, यह हाथी कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस. कृष्णदास कविराज गोस्वामी says we should not be lazy in understanding the philosophy. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हमें दर्शन को समझने में
आलस नहीं करना चाहिए। Similarly, Rup Goswami gives the complete theology of rasa इसी प्रकार से रूप गोस्वामी जो है वो रस के विषय में बहुत विस्तार से बताते हैं in Bhakti Rasamrita Sindhu. भक्ति रसामृत सिंधु में। And he did a sequel to Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjwal Neelmani. और उसका सीक्वल है, उसका आगे का जो संस्करण है वह उज्जवल नीलमणि, Where he is analyzing in detail, especially the Shringar rasa. जिसमें कि वो श्रृंगार रस के ऊपर विशेष रूप से वर्णन करते हैं। Just imagine, so much, such a science, Krishna consciousness. तो आप सोच के देखिए कृष्ण भावनामृत कितना बड़ा विज्ञान है। How the gopis are feeling emotions in detail. He has analyzed different emotions. किस प्रकार से जो गोपियां हैं भगवान के प्रति उनके अलग अलग भावनाएं हैं उनको बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा किया है। And Rup Goswami was such a big scholar. और रूप गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे He has written 12 verses, कि उन्होंने 12 श्लोकों की which रचना is की है, called Charit Kavita Vani. जिसको बोलते हैं चरित कवितावली। Will be amazed by using 2 words he used to compose verses. आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करके वो पूरे श्लोक की रचना कर देते हैं। So in just by using 2 letters, he described the whole Ras Leela. सिर्फ 2 अक्षरों का इस्तेमाल करके वो पूरी रास लीला का वर्णन कर देते हैं। रसा सर सुरा रसुरु असौरे ससरा ससा संसार से असौरसे सुरी रमसु स रसा रसा. ये मैं रिपीट नहीं कर सकता। Yeah, we're not able to repeat. Under its translation is the Lord who is the shower of nectar, तो भगवान जो हैं वो अमृत की बारिश करते हैं, whose thighs are broad, जिनके जो जंघाएं हैं वो बहुत चौड़े हैं, who kills the demons, जो राक्षसों को मारते हैं, who with a sword cuts the cycle of repeated birth and death, जो कि अपनी तलवार से जन्म मृत्यु के चक्र को ही काट देते हैं, holding a lotus flower, वो कमल का फूल धारण करते हैं, and filled with transcendental amorous desire, और उनके हृदय के अंदर बहुत ही सुंदर प्रेममयी इच्छाएं हैं, entered the Ras dance. वो कैसे रस नृत्य में प्रवेश करते हैं। Again with 2 words he is describing Srimati Radharani. और सिर्फ 2 शब्दों से वो श्रीमती राधा रानी का वर्णन करते हैं। धरे धरा रधर धरम धरा धर धुर रुधम धीर धीर अरधारधति रोधम राधा धुराधम. On the hill earnest Radha worshipped Supreme Lord. तो उस पहाड़ के ऊपर कैसे राधा जो है वो भगवान की पूजा कर रही हैं, Who lifted Govardhan hill, जिसने कि गोवर्धन पर्वत उठाया checked the great rains, और बारिश को रोका, and stopped the anguish of the devotees. और भक्तों का जो कष्ट था उसको रोका। So that way they were big scholars, और इस प्रकार से वो कितने बड़े विद्वान थे, and they have given us these wonderful literatures. उन्होंने हमें इतने सुंदर सुंदर ये शास्त्र दिए हैं। And Srila Prabhupada had given the essence of all those literatures in his purports. और श्रील प्रभुपाद जी ने इन सारे शास्त्रों का निचोड़ अपने तात्पर्यों में हमें दिया है। And that's why Prabhupada says books are the basis. और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पुस्तकें जो हैं वो आधार हैं। So we should really, try to every day read Srila Prabhupada's purports and very seriously and try to imbibe his teachings in our lives. तो इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को बहुत दृढ़ता से और पढ़ना चाहिए और उसको अपने जीवन में उसका अनुपालन करना चाहिए। So this is the first instruction, tattva. तो पहला ये निर्देश था चैतन्य महाप्रभु का रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को तत्व के ऊपर। But even if the philosophy is clear to someone, तो अगर मान लीजिए किसी को दर्शन समझ भी आ जाए, but if there are no proper Vaishnava relationships, Vaishnava sadachar, लेकिन अगर वैष्णव संबंध ना हो, वैष्णव सदाचार ना हो, so there won't be any change of heart. तो हृदय में परिवर्तन नहीं आता। This we have a topmost philosophy in our Chaitanya Mahaprabhu's movement. चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में हमारा दर्शन सबसे उच्चतम है। But this darshan, this philosophy will be revealed in our heart if we have the blessings of the Vaishnavas. पर ये जो दर्शन है हमारे हृदय में प्रकाशित तभी होगा जब हमें वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा। And Sanatana Goswami and Rupa Goswami exhibited perfect Vaishnava sadachar. और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने सबसे पूर्ण रूप से वैष्णव सदाचार को प्रदर्शित किया। We all know that pastime when Lord Chaitanya invited Sanatana Goswami to meet him in the afternoon at Tota Gopinath. हम सब उस लीला को जानते हैं जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को टोटा गोपीनाथ में दोपहर के समय में आमंत्रित किया था। And Mahaprabhu went through sea beach. Sanatana Goswami went through the path of sea beach. हाँ, और सनातन गोस्वामी कैसे उस गर्मी में जो है वो समुद्र के तट के किनारे से होते हुए आए थे। Walking barefoot on the hot sand.
खाली पैर जलते हुए रेत के ऊपर चलकर आए थे He got blisters on his feet. और उनके पैर में फोले हो गए। When he met Mahaprabhu, और जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, Mahaprabhu knew everything. महाप्रभु को सब कुछ पता था, Still he asked, फिर भी उन्होंने पूछा, because he wanted to glorify his devotees. क्योंकि वो अपने भक्त का गुणगान करना चाहते थे। From which path you came? किस रास्ते से आए हो? He said, through the path of seashore. तो उन्होंने बोला कि मैं समुद्र के किनारे से आया हूँ। Why not through the path of Singhdwar? कैसे सिंह द्वार की तरफ से क्यों नहीं आए? Then Sanatana Goswami said, because I have wounds all over my body. सनातन गोस्वामी ने बोला क्योंकि मेरे पूरे शरीर पे घाव हैं। I didn't want that any worshipper of Lord Jagannath could even touch me. मैं नहीं चाहता था कि जगन्नाथ जी का कोई पुजारी, कोई सेवक मेरे शरीर को स्पर्श करे And they may get impure. और इस प्रकार से वो अपने आप को अपवित्र कर ले। So hearing this, and Mahaprabhu said, but you got blisters on your feet. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला लेकिन तुम्हारे पाँव में फोले हो गए, You didn't realize that? तुमने इसको नहीं देखा? He said, oh, I couldn't know that because I was absorbed in thought of meeting you. तो सनातन गोस्वामी ने बोला अरे मैंने तो इसके ऊपर विचार ही नहीं किया क्योंकि मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आता था। So hearing this, when Mahaprabhu saw that he observed such wonderful Vaishnava etiquettes, Mahaprabhu was very pleased. तो जब महाप्रभु ने देखा कि कैसे सनातन गोस्वामी ने वैष्णव सदाचार का इतना दृढ़ता से पालन किया, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। And he said, one who doesn't follow Vaishnava Sadachar, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता, he becomes a laughing stock in the public. तो वो एक हंसी का पात्र बन जाता है लोगों के बीच में। Sanatana Goswami and Rupa Goswami showed us how to deal with devotees. सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया कि कैसे हमें भक्तों से आदान प्रदान करना चाहिए, How to deal with general public. किस प्रकार से जो सामान्य लोग हैं उनसे मिलना चाहिए, And how to deal with those people who are envious. और किस प्रकार से जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे मिलना चाहिए। Sanatana Goswami was so popular in whole of Vraj. सनातन गोस्वामी पूरे व्रज में इतने उनकी इतनी ख्याति थी। When he used to go for Madhukari in one village, जब वो मधुकरी के लिए जाते थे एक गांव में, he used to relate very lovingly with all the people. तो सबसे बहुत प्रेम से मिलते थे। He used to ask about their welfare. उनके बारे में पूछते थे, How is the crop? किस प्रकार आपका फसल कैसा है, Are you able to marry your daughters? क्या अपनी बेटी का विवाह कर पाया। He used to address their concerns. उनकी जो भी परेशानियां थी उसके विषय में चर्चा करते थे। And when he used to go from one village to other village, और जब वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, all the village used to come to see him off. तो सारे गांव के लोग उनको छोड़ने के लिए आते And थे they used to cry. और सब रोने लगते थे। And then he used to enter the other village. और जब वो दूसरे गांव में प्रवेश करते थे, Everyone used to welcome him very nicely. Blissfully, now he's coming to our village. सब लोग उनको बहुत प्रेम से उनको अपने गांव में उनको स्वीकार करते And थे in कि that अब वो way हमारे, also he used to address to their concerns. और उनके उस गांव दूसरे गांव के लोगों के भी जो समस्याएं थी उनको वो And amongst each other also. और आपस में भी All the Goswamis used to share their heart. जो जितने गोस्वामीज थे वो भी आपस में अपने हृदय को एक दूसरे से उसके बारे में बताते थे। Once Rupa Goswami, he composed a verse एक बार रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना की, and he showed it to Sanatana Goswami. तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने दिखाया। In that verse, Rupa Goswami has expressed the braid of Radharani as like a snake. तो उस श्लोक में रूप गोस्वामी ने राधा रानी की जो बाल था, चोटी थी, उसको एक सांप से उसकी तुलना की थी। So Sanatana Goswami said, no, snake, comparison with snake is not proper. तो सनातन गोस्वामी बोला नहीं, चोटी की तुलना सांप से करना अच्छा नहीं है। And Rupa Goswami used to consider Sanatana Goswami as his guru. और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के समान He मानते थे। said, okay, I'll correct it. तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं इसको सुधार दूंगा। And when the Sanatana Goswami was going away, और जब सनातन गोस्वामी जा रहे थे, he saw that village on a swing. Some village girls are riding on the swing. तो उन्होंने देखा कि गांव में जो झूला होता है उस पे जो गांव की कुछ बालिकाएं हैं वो झूला झूल रही थी। On one little girl, he shows that on her back of the head, Sanatana Goswami could see a snake. तो सनातन गोस्वामी को एक छोटी सी जो बालिका थी उसके पीछे में उसके चोटी की जगह उनको सांप दिखा। Hey, the snake is there. और वो बोलने लगे कि अरे देखो सांप है। And immediately that girl disappeared.
और तुरंत ही वो जो बालिका थी वो वहां से अंतर ध्यान हो So गई। Sanatana Goswami could understand. She herself was Srimati Radharani. तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी And थी she came to confirm, yes, the Rupa Goswami's verse was proper. और वो आई थी ये बात को स्थापित करने के लिए कि जो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा था वो सही था। Then he told Rupa Goswami, okay, your composition was okay. तो Let फिर it be उन्होंने like रूप that. गोस्वामी को बोला कि आपने जो रचना की है वो ठीक है। So that way, Rupa and Sanatana Goswami exhibited proper Vaishnava Sadachar. तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने जो कैसे वैष्णव सदाचार होना चाहिए उसका प्रदर्शन It's किया। very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Normally we feel that Vaishnava Sadachar is meant for young devotees, new devotees. हम साधारणतः ऐसा सोचते हैं कि जो वैष्णव सदाचार है वो नए भक्तों के लिए है। So when we can grow old, we are very mature, we are very senior, no need to follow these formalities. जब हम भक्ति में आगे बढ़ गए, जब हम सीनियर बन गए, जब हम दक्ष बन गए, तो हमें इन वैष्णव सदाचारों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। Sadachar means always we have to follow. सदाचार का मतलब है कि हमेशा हमें उसका पालन And करना all है। Sada means Sadaiv Sarvatha Sarvatra. सदा का मतलब है हमेशा, हर जगह और हर तरफ। At all places, in all circumstances, in all situations. हर जगह, हर स्थिति में और हर तरफ। It protects our devotional service. ये हमारे भक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। Okay. So this is the second part. तो ये जो था वो दूसरा निर्देश था। Third was Mahaprabhu gave them instructions of establishing deities. तीसरा निर्देश महाप्रभु ने जो दिया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वो था अर्च विग्रह की स्थापना करना। Even after getting the empowerment from Mahaprabhu, महाप्रभु के द्वारा शक्ति संचार होने के बाद भी Rupa or Sanatana remained very humble. रूप और सनातन विनम्र रहे। Rupa Goswami was lamenting. रूप गोस्वामी ऐसा विचार कर रहे थे, I could not establish, I could not find Radha Govind. मैं I couldn't find Govind Dev Ji. कि मैं गोविंद देव जी को ढूंढ नहीं पाया। Although he written so many scriptures, हालांकि इतने सारे शास्त्रों में उनका वर्णन है, but he was lamenting, I couldn't fulfill the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. तो बहुत दुखी होते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन नहीं कर पा रहा। Then a cowherd boy came and showed him where a cow comes and gives milk. तो फिर एक ग्वाल बाल आया और उसने सनातन गोस्वामी को दिखाया कि देखो कैसे एक गाय है वो प्रतिदिन दूध देती है। And the Govind Dev Ji were found. और इस प्रकार से गोविंद देव जो है उनको ढूंढा उन्होंने। Similarly, Sanatana Goswami established Madan Mohan Ji. और इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन की स्थापना की। So the instruction for us is, तो हमारे लिए जो निर्देश है we should make the services in the temple, service to the deities with our mind, body, wealth, our intelligence. We should dedicate everything to the deities. तो हमें अपने तन मन धन बुद्धि सब कुछ मंदिर में अर्च विग्रह की सेवा में लगाना चाहिए। This is very essential. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Okay, that way we will able to sacrifice. तो इस प्रकार से हम जो है वो सैक्रिफाइस कर पाएंगे। Okay, this was the third thing. तो ये तीसरा आदेश था। Fourth was, lupt tit uddhara, that all those places which are lost, places of pilgrimage, they have to be re-established. चौथा था कि जितनी भी लीला स्थलियां हैं भगवान की उसका पुनरुद्धार करना। So we know that Rupa and Sanatana Goswami established all the Leela Sthalis in Vrindavan. तो हम सब जानते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सारे लीला स्थलियों को पुनरुद्धार किया। So for us, we should visit all these pilgrimage places, तो हमारे लिए जो है कि हम इन सारे लीला स्थलियों का दर्शन करें, serve the dham, धाम की सेवा करें, and if you are not able to go to the dham, और अगर हम धाम नहीं जा पाते हैं we should make our homes, our temples as dham. तो हमें अपने घर को, हमारे जो मंदिर हैं उसको धाम बनाना चाहिए। Mahaprabhu used to say, more man Vrindavan. महाप्रभु कहते थे कि मेरा मन वृंदावन है। So we have to make a sacred place. तो हमें एक शुद्ध पवित्र स्थान बनाना है। Okay, so this is the fourth instruction. तो ये चौथा आदेश था। Fifth was Vairagya Shikshan, that teach people renunciation, true renunciation. पांचवा था कि लोगों को वास्तविक वैराग्य के बारे में बताया जाए। Vairagya in short means let go things, let go relationships, people, places which are not favorable for Krishna consciousness. तो अगर वैराग्य का हम वैराग्य को समझे तो इसका मतलब है कि जितने भी संबंध है, जितने भी जो लोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं जो कि हमारे कृष्ण भावनामृत में हमें मदद नहीं कर रही हैं, उनका त्याग करना। उनको जाने दें, let them go. उनको जाने दो। Sometimes when we keep them in our mind, which keeps on disturbing us. तो कई बार हम अपने मन में कुछ चीज़ों को रखते हैं जो कि हमें बार बार परेशान करता रहता है। One great scholar, Roop Narayan Chakravarti.
एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रूप नारायण He चक्रवर्ती came to Rupa and Sanatan Goswami रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए for Shastrarth. शास्त्रार्थ करने के लिए। Rupa and Sanatan wanted to save their time. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अपना समय बचाना चाहते They थे, just accepted their defeat तो उन्होंने हार मान लिया and gave him Vijay Patra. Okay, we accept our defeat in writing. और उसको लिखित रूप में विजय पत्र दे दिया। They didn't want to waste their time. वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते Let थे, it go. जाने दो इसको। So it's a vairagya. तो ये वैराग्य है। So, I mean, a lot of things to say. When Sanatana Goswami came to meet Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi, तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बनारस में मिले he had long hairs, long beard, very old clothes. तो उनके बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े दाढ़ी थी, बड़े पुराने वस्त्र पहने हुए थे। For many days he couldn't eat properly, sleep properly. कई दिनों तक वो सो नहीं पाए, खा नहीं पाए अच्छे से। But on the way he had met his brother-in-law. लेकिन रास्ते में उनके जो बहन के जो पति थे उनसे मिले थे, So he had given him very nice blanket, woolen blanket. तो उन्होंने उनको बहुत ही सुंदर एक बहुत ही महंगा कंबल दिया था ऊनी, And Sanatana Goswami was wearing that. और सनातन गोस्वामी उसको ओढ़े हुए थे। So Mahaprabhu used to look at Sanatana Goswami, he used to stare at the blanket. तो महाप्रभु जब भी सनातन गोस्वामी को देखते थे तो उनके कंबल की ओर ही देखते थे। So Sanatana Goswami could understand. तो सनातन गोस्वामी समझ गए। So he approached and he saw one old, Brahman, a beggar at the ghat of Ganga. तो गंगा के घाट पे उनको एक बहुत ही वृद्ध भिखारी दिखा, He said, and he had a very torn out quilt. और उसके पास एक बहुत फटा पुराना ऐसा रजाई था। He told that Brahman, please take this blanket from me and give your torn out quilt to me. तो उन्होंने बोला कि तुम ये कंबल ले लो और अपना फटा पुराना जो रजाई है मुझे दे दो। That beggar said, this man is joking. He said, please don't joke with me. तो भिखारी ने बोला, अरे मेरे साथ मजाक मत करो। No, it's not a joke. I am requesting you. तो उस सनातन गोस्वामी बोला, नहीं ये मजाक नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। And when Sanatana Goswami came in front of Lord Chaitanya, और उसके बाद जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सामने आए the Mahaprabhu was very pleased. तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। And Mahaprabhu said, तो महाप्रभु ने बोला a good physician कि एक जो अच्छा डॉक्टर है will treat his patient in such a manner तो वो अपने जो पेशेंट है उसको इस प्रकार से उसके रोग को दूर करता है that the disease is finished right from the root. ताकि उसका जो रोग है वो जड़ से खत्म हो जाए। Okay, so Sanatana Goswami could understand that. तो सनातन गोस्वामी इस चीज को समझ पाए। So in totality today we discuss how to become a moon-like devotees. तो हमने आज चर्चा किया कि किस प्रकार से हम चंद्र के समान भक्त बन सकते हैं, How to get empowered, how we can attract empowerment. किस प्रकार से हम हमारे अंदर शक्ति का संचार हो सकता है। To attract empowerment from Lord Chaitanya and Srila Prabhupada. शक्ति का संचार का आकर्षण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी से Number one, we have to cultivate humility सबसे पहला हमें विनम्रता अपने जीवन में प्रदर्शित करना होगा and sincere eagerness to serve. और आतुरता, सेवा की आतुरता। And then when we get empowerment, और तब जब हमारे अंदर शक्ति संचार होगा then we can follow these 5 instructions. तब हम इन 5 आदेशों को पालन कर सकते हैं। Tattva, तत्व, that is, we should be very serious in studying and understanding books. तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। Vaishnav Sadachar. वैष्णव सदाचार। And then after Vaishnav Sadachar, we have deity services in temple. मंदिर में सेवाएं। And then pilgrimage, making a sacred place, making our consciousness clean, making our home, making our temple like a Vaikuntha, like a dham. तो तीर्थ स्थान, अपने मन को पवित्र करना, अपने घर को पवित्र करना, अपने मन को इतना पवित्र करना है कि वो धाम के समान हो। And Vairagya, then renunciation. और वैराग्य, Letting things go which are not favorable for our Krishna consciousness. उन चीजों को जाने देना जो कि हमारे भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में हमें मदद नहीं करते। Okay, thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Srila Prabhupada ki jai. श्री प्रभुपाद की जय। Any questions? Do you have any questions? प्रश्न है? Hare Krishna Puji. Sorry Puji, just got late because of schedule was earlier 7:30, so I was not informed. Sorry. So Puji, this serious eagerness to serve, Puji, can you please elaborate something on this? Yeah. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि किस प्रकार से हम भक्ति में आतुरता अपने जीवन में ला सकते हैं। Yeah. So eagerness to serve will come when we associate with devotees who are very, very, very eager to serve.
तो अगर भक्ति में हम आतुर होना चाहते हैं तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना पड़ेगा जो कि वास्तविकता में भक्ति में आतुरता के साथ सेवा कर रहे So हैं। when we observe such devotees, how much they are eager to serve, how much they are sacrificing, so we also feel inspired. तो जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं किस प्रकार से वो अपने जीवन में सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी प्रेरणा आती है। Or when we serve such devotees, Shushushu Shraddhanam Vasudeva Katharuchi Syat Mat Sevya Vipra Punya Tirtha Nishemanat. By serving those devotees, we also get infected with that eagerness. तो जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी उस प्रकार की आतुरता का विस्तार होता है। Okay. धन्यवाद। Anyone else? तो मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि आपने बोला कि वैराग्य का मतलब है उन विचारों को भी त्यागना जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसको भूलना बहुत आसान नहीं होता। हम चाहते भी हैं लेकिन फिर भी उसका बार बार स्मरण आता है, तो कैसे उसको हम लेट गो कर सकते हैं? माई क्वेश्चन इज कि समटाइम्स इन आवर लाइफ्स वी हैव सच इंसिडेंट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट. So Prabhuji explained that renunciation means letting go such things, such feelings. So how to do that? Yeah, thank you for a very important question. तो धन्यवाद आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। Performing devotional service in this material world, we have to go through many challenging situations. तो इस भौतिक संसार में जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कई सारे ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जो बहुत आसान नहीं होता। And sometimes some incidents, some dealings really affect our, really, hurt our heart. हाँ, और कई बार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे हृदय को बहुत दुख पहुंचाती हैं। But still, we have to overcome those things. पर फिर भी हमें उससे ऊपर उठना होगा। We should take it as a purification plan from Krishna. हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। Although it will take time. हालांकि इसमें समय लगेगा। But we should try to engage more and more in hearing and chanting. तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन में लगाना चाहिए। And pray to Krishna and Srila Prabhupada. और कृष्ण से और श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए to accept all these things कि वो इन सब चीज़ों को मान लें as His mercy, कि as their mercy, कि हम इस घटना को, इन सारी चीज़ों को उनकी कृपा के रूप में समझ पाएं and give us the intelligence to understand some lessons from these dealings. और हमें ये बुद्धि दें कि हम ये जो आदान प्रदान हुआ या जो ऐसी घटनाएं हुई उससे हमको शिक्षा ले सकें। And if possible, we should take shelter of some senior devotees, senior Vaishnavas who can always guide us, who can help us to go through this tough phase. और संभव हो तो हमें अपने से वरिष्ठ वैष्णवों का शरण लेना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम ऐसी स्थिति से उबर सकें। थैंक यू। So thank you very much. His Grace Sanatana Prabhu has come. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Prabhu. So we thank Prabhuji by chanting 3 times Hari Bol. Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol!